Hello students, welcome to our YouTube channel. This is lecture 3rd in the series of computer science lectures for class 11th. Today's topics are what is a computer, functional components of a computer, CPU and its components, and common bus architecture. Before we proceed, I suggest you to take out your notebooks and pen and start making notes so that you can take maximum benefit from these lectures. Before we start with today's topics, let us recall what we learned in the previous lecture. In previous lecture, we covered the generations of computer. In generations of computer, we gained knowledge about the major technology that is associated with each generation. We also learned how those technologies impacted the characteristics of computers. We covered major hardware and software developments that took place during each generation. We covered the names of important computers from each generation. And in the 5th generation of computer, we covered the advanced topics like artificial intelligence, parallel processing, Internet of Things, superconductivity, biometrics, and virtual reality. In today's lecture, we will learn the definition of computer. In definition of computer, we will see a simple definition of computer, and then we will try to understand the meaning of each term that comes in that definition. Basically, we will try to postmortem the definition of computer. We will learn the meaning of data and information. Here we will try to understand when does a data and how a data is transformed into information. We will also cover functional components of computer. In functional components, we will see the various functional components of a computer and the devices that comes under those components and how those functional components are vital for a computer. We will cover CPU and its components. In CPU and its components, we will see what is the function of a CPU and how a CPU does something. We will also cover its components like the ALU, the control unit, and the memory registers. We will cover common bus architecture. In common bus architecture, we will see how different devices inside a computer can communicate with each other using a set of common bus or common transmission path. So let's start the first topic, that is computer or definition of computer. If I ask you, students, tell me the definition of computer, you will say, sir, it is very simple. Computer is any electronic device that can perform a variety of operations according to a set of instructions called program. Yes, that is absolutely correct. But we are not in class 6th. Now we are in class 11th. We not only need to remember the definition, but we also have to know the significance of each important term that comes inside the definition. So let us define a computer. A computer is an electronic device that processes the input according to the set of instructions provided to it and gives the desired output at a very fast rate. What does it mean? What is the meaning of electronic device? The meaning of electronic device is that computer has certain components or certain circuits which communicate with each other through electric signals. Electronic device means the communication or transfer of some information or data takes place through the electric pulses or electric signals. It processes the input. What does it mean? It means that processing means some task or some operation. It means that when we give some input to the computer does something to it. Computer performs some operation on that data. Computer performs some operation on that input according to the set of instructions provided to it. It means that when we provide some input, computer performs some operations, but it does not perform it itself.
कंप्यूटर अपने आप अपने मन से कुछ नहीं करता, उसे हम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, उसी के बेसिस पे कंप्यूटर कोई प्रोसेस करता है। मीन्स कंप्यूटर इज़ नॉट अ स्मार्ट मशीन, कंप्यूटर इज़ अ डम मशीन, और हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग उस पर प्रोसेसिंग करता है। ऐसा नहीं होगा कि हमने कंप्यूटर को कुछ इनपुट दिया और कंप्यूटर का अपना मन करा कि नहीं आज प्लस नहीं करते, आज हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। एंड गिव्स द डिज़ायर्ड आउटपुट एट अ वेरी फास्ट रेट। what is the meaning of desired output? Desired output means कि हमने इंस्ट्रक्शन दिया और उसी इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे वो कुछ आउटपुट दे रहा है। हमने वो इंस्ट्रक्शन कुछ सोच के दिया है, हम चाहते हैं कि उस इनपुट पे ये इंस्ट्रक्शन रन हो और हमें ऐसा डेटा मिले। मतलब कि अगर हम एक कंप्यूटर को 1+1 करने के लिए दे रहे हैं तो इसका आंसर 2 आना चाहिए, वो डिज़ायर्ड आउटपुट है। अगर वो कंप्यूटर 1 × 1 करके हमें 1 ही दे दे आउटपुट, तो वो डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं है। एंड ऑल इट हैपन्स एट अ वेरी फास्ट रेट। ये जो कंप्यूटर है छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस को मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में कर सकता है। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, यानी कि 1 सेकंड में ये लाखों इंस्ट्रक्शंस रन कर सकता है। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। आई होप कि आज के बाद आपको डेफिनेशन भी याद रहेगी और कंप्यूटर एक्चुअल में है क्या ये भी याद रहेगा। सो दिस इज़ द डायग्राम आई हैव ड्रॉन फॉर यू। We give some input to the computer does some processing inside it and gives the output. All this happen in a sequential manner. पहले इनपुट जाएगा, फिर प्रोसेसिंग होगी, फिर आउटपुट होगा। ऐसा नहीं होगा कि हमने इनपुट नहीं दिया और पहले ही आउटपुट आ गया। सो दिस साइकिल इज़ इम्पोर्टेंट। दिस साइकिल इज़ कॉल्ड इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, and we will see the definition of input process output cycle in the next slide. IPO cycle or input process output cycle. Every task given to a computer follows an input process output cycle. It needs certain input, it processes those inputs and produces the output. मतलब क्या है? मतलब हमने पिछली स्लाइड में देखा कि हम कुछ भी इंस्ट्रक्शन, कुछ भी टास्क, कुछ भी ऑपरेशन कंप्यूटर को देते हैं तो वो एक साइकिल फॉलो करता है, वो एक स्टेप वाइज मैनर में होता है, वो हमेशा इनपुट प्रोसेस आउटपुट के सीक्वेंस में होता है। मतलब इफ़ वी गिव सम टास्क टू कंप्यूटर, इट विल ऑलवेज फॉलो ए सीक्वेंस ऑफ इनपुट, देन प्रोसेस, देन आउटपुट, एंड दिस इज़ कॉल्ड इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल. So this is IPO cycle. Why I have created a separate slide for this definition, because it is important from exam perspective. ये क्वेश्चन जो है आपके 11th के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और पूछा जाता है, तो आप इसे हमेशा समझ लीजिए और इसकी डेफिनेशन को याद कर लीजिए. नेक्स्ट इज़ डेटा एंड इंफॉर्मेशन. Data and information. What is data? What is information? We have learned many times. Whenever someone asks us what is a data and what is an information, we give them the definition, which is valid. But today we will try to understand it using an example. See, data, raw facts and figures that do not provide any meaningful information are called data. यानी कि ऐसा कोई भी टर्म, ऐसा कोई भी फिगर या फैक्ट जो हम प्रोवाइड करें जिसका इंडिविजुअली तो कोई मीनिंग नहीं बन रहा, यानी अपने आप में उसका कोई मतलब नहीं है, उसे हम डेटा कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं राजू. सपोज़ मैंने कहा राजू, आपको तो थोड़ा बहुत आइडिया है कि राजू कोई नाम है. सपोज़ कोई फॉरेनर आया, कोई दूसरी जगह का आया, तुर्की वगैरह का, उसे मैंने बोल दिया राजू. उसे क्या पता कि राजू कोई नाम है? वो समझेगा राजू किसी फल का नाम है, किसी फ्रूट का नाम है, या फिर राजू हो सकता है ये मुझे अपनी लैंग्वेज में अब्यूज़ कर रहा है, ऐसा भी सोच सकता है. सो व्हाट इज़ राजू? अगर मैं उससे ये बोलूँ कि राजू इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, ये तो डेफिनेशन हो गई एक नाउन की. अगर मैं बोलूँ राजू इज़ 9 ईयर ओल्ड, तो वो समझ जाएगा कि राजू शायद कोई लड़का है, उसका नाम राजू है. तो यही डिफरेंस है डेटा और इन्फॉर्मेशन में. व्हेन डेटा इज़ रिप्रेजेंटेड इन मीनिंगफुल फॉर्म, इट बिकम्स इन्फॉर्मेशन.
and it follows the same cycle as IPO cycle. हम कंप्यूटर को कुछ डेटा देते हैं प्रोसेस करने के लिए, कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है किसी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, किसी सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग या किसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, और हमें इंफॉर्मेशन देता है. आई होप आपको समझ में आया होगा, बट फिर भी मैं आपके लिए एक काम करता हूँ, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ. गिव मी अ सेकेंड. ये हमारे पास एक पाइथन का इंटरप्रेटर है, पाइथन शेल, पाइथन 3.8 का. अभी आपको इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सब कुछ इसमें पढ़ाऊँगा, बस टाइम आने दीजिए. पहले हम थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे और एक बार जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचते हैं अपना प्रोग्रामिंग पार्ट पे, तो मैं आपको प्रोग्रामिंग भी पढ़ाऊँगा. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड यूजिंग एन एग्जाम्पल. Let me increase the font size so that you can see easily. I hope now everything will be visible to you. Let us write a program. Let us write a simple function. Okay, here we have a program. Suppose this program is stored in a computer and a function is running. We have called a function example. Now see, the interpreter is asking for some इनपुट. कंप्यूटर हमसे कोई इनपुट मांग रहा है, तो ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट के हिसाब से भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. हमें उससे इस एग्जांपल से हमें IPO साइकिल भी समझ में आ जाएगी. सी, यहाँ पे कंप्यूटर हमसे कोई इनपुट मांग रहा है, ठीक है. ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हमसे कुछ इनपुट मांग रहा है और बोल रहा है कि एंटर सम टेक्स्ट. ये हमसे कोई इनपुट मांग रहा है, हमने इसे टेक्स्ट दे दिया. टेक्स्ट हमने दिया इसे, मान लीजिए अपना राजू, फिर से हमारा फेवरेट राजू हो गया इनपुट. अब ये हमसे एक और इनपुट मांग रहा है, बोल रहा है कि एक और इनपुट दो, वो नंबर होना चाहिए. हमने बोल दिया ठीक है, हम एक नंबर दे देते हैं इन्हें. हम नंबर दे देते हैं अपना 17. हमसे नंबर मांगा था, हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है, अभी हमें कुछ नहीं पता. हमसे एक टेक्स्ट मांगा, हमसे एक नंबर मांग लिया, पीछे क्या हो रहा है हमें नहीं पता, ठीक है. हमने इसे नंबर दे दिया. अब हमारे पास क्या आउटपुट आ गया है, हमारे पास राजू इज़ 17 ईयर ओल्ड. अगर मैं सिर्फ राजू बोलता तो कुछ मीनिंग नहीं बन रहा था, अगर मैं सिर्फ 17 बोल देता तो भी कुछ मीनिंग नहीं बन रहा था. लेकिन कंप्यूटर ने हमें डेटा लेकर एक इन्फॉर्मेशन दे दी, डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया. राजू इज़ 17 ईयर ओल्ड, इसका तो मतलब है ना, आप किसी से बोलोगे बाहर जाके, दूसरे देश में भी, भले ही उसे ये राजू का मतलब ना पता हो, अगर आप बोलोगे राजू इज़ 17 ईयर्स ओल्ड तो उसे समझ में आ जाएगा कि कोई बंदा है राजू जो कि 17 ईयर्स का है, ठीक है.
अब देखिए इसमें कंप्यूटर की डेफिनेशन या इनपुट प्रोसेस आउटपुट क्या है। हमने इनपुट दिया राजू और 17, वो इनपुट जो था उसकी प्रोसेसिंग हुई एक फंक्शन के अकॉर्डिंग। कंप्यूटर को हमने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे, उस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर ने उसकी प्रोसेसिंग की और हमें आउटपुट दे दिया, और वो भी बहुत जल्दी दे दिया, बहुत जल्दी से रन करके दे दिया। हमने जैसे ही एंटर किया वैसे ही आउटपुट आ गया। ऐसा नहीं किया कि कंप्यूटर ने सोच समझ के बहुत देर लगा दी। और हमें जो आउटपुट मिला वो ऐसा नहीं है कि रैंडम मिल गया, हमें वही आउटपुट मिला जो पहले से इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया गया था। ऐसा नहीं था कि हमने दिया तो राजू और 17 था और वहाँ से लिख के आ गया कि राजू हैज़ 17 पेन्स, क्योंकि वो तो हमने इंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं था, वो तो कमांड थी ही नहीं। हमें वही मिला जो एक इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आउटपुट हमें मिलना चाहिए था। आई होप कि आपको ये एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। बाकी आपको अभी इस लेवल पे अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इस प्रोग्रामिंग की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ठीक से समझाऊंगा। आई विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग इन प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग। आई विल टीच यू एवरीथिंग इन SQL and everything that is required and needed at your level. So let's resume to our lecture. See, we are here. We have covered data and information and I hope that अब आपको डेटा और इन्फॉर्मेशन का मतलब समझ में आ गया होगा, क्योंकि एग्जाम्पल से आप लोग बेहतर समझते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। सी, कंप्यूटर को कुछ काम तो करना है, कुछ फंक्शन करने हैं। अब वो फंक्शन करने के लिए जिन भी पार्ट्स का, जिन भी डिवाइसेस का या कंपोनेंट्स का यूज़ होता है उन्हें हम फंक्शनल कंपोनेंट्स कर देते हैं। यानी कि ऐसे कंपोनेंट्स जो कोई फंक्शन कर रहे हैं, जो कि रिक्वायर्ड हैं किसी फंक्शन को करने के लिए। इन इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल वी सॉ दैट every task in a computer follows input, process and output. Thus we also divide the components of a computer into some functions according to some functions, and these functional components are input device, CPU, memory and output devices. See, these devices are important for the IPO cycle or for the working of computer, because in the definition of computer we saw that computer takes some input, computer does some processing to that input, and computers provide that output or stores that output. We will see what is the function of memory, but at this time memory is something where data is stored or processes are stored while they are executing. So let us start with input device or input unit. We all know what are the input units, and I think we do not need to waste too much time in input units. Input units consists of devices attached to the computer. हम input devices के through input देते हैं। हमें कुछ भी input देना है तो हम input devices के through ही दे सकते हैं। If we want to communicate with computer, we have to communicate through input devices. जैसे मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। जैसे मैंने टाइप किया तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। मैंने कर्सर को मूव किया तो टच पैड एक इनपुट डिवाइस है। इनके थ्रू मैं कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ। ऐसी सारी डिवाइसेस जिनसे हम कम्युनिकेट करते हैं वो इनपुट डिवाइसेस हैं। नाउ हाउ डू दीज इनपुट डिवाइसेस कम्युनिकेट? दीज डिवाइसेस टेक इनपुट एंड कन्वर्ट्स इट इनटू बाइनरी लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स। व्हाट इज़ अ बाइनरी लैंग्वेज? हमने पढ़ा था, जब हमने जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ा था, फर्स्ट जनरेशन में हमने देखा कि कंप्यूटर्स मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में ही काम कर रहे थे। मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आती है और असेंबली लैंग्वेज का हमने डेवलपमेंट किया था। तो मशीन लैंग्वेज जो होती है उसमें हम सिर्फ 1 और 0 का यूज़ करते हैं। 1 और 0 के यूज़ से हम सीक्वेंसेस बनाते हैं और उसे ही हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। So the language in which we use only 1 and 0 is binary language. Computer cannot understand any other thing apart from binary language.
Thus, what these input devices do, they take some input in human readable form and converts it into binary language, and that data, that converted binary language data is given to the computer. जैसे ये एक कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे हम तो ABCD देख के टाइप कर रहे हैं, बट जब हम ABCD पे टाइप करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ एक कोड बनता है जो कि बाइनरी में होता है, उसे कंप्यूटर समझता है और उसे समझ के फिर वो डिस्प्ले पे हमें दिखाता है. तो आई होप आपको इनपुट डिवाइसेस का कंसेप्ट समझ में आया होगा, एंड यू शुड नो द नेम्स ऑफ फ्यू इनपुट डिवाइसेस. यू शुड नो दैट देयर आर सम इनपुट डिवाइसेस लाइक these game controllers, the joystick, the scanner, the camera and the microphone, and these are also input devices. Next is CPU or Central Processing Unit. CPU is called control center of the computer. कंट्रोल सेंटर ऑफ द कंप्यूटर, CPU को हम कंट्रोल सेंटर कहते हैं. तो कंट्रोल सेंटर क्यों कहते हैं? क्योंकि CPU जो है वो बाकी सारे कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है. बिना CPU के कुछ भी पॉसिबल नहीं है. अगर CPU में कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो समझ लीजिए आपका कंप्यूटर जो है डेड हो गया है, कोई डिवाइस किसी काम की नहीं है. सो CPU इज़ कॉल्ड कंट्रोल सेंटर ऑफ कंप्यूटर because CPU controls other components by generating some control signals. CPU कुछ सिग्नल्स को जनरेट करता है, वही इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस हमारी, और उनके थ्रू CPU बाकी सारी डिवाइसेस को कंट्रोल करता है. CPU को माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था अपना 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में. CPU इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर. वाई? बिकॉज प्रोसेसिंग टेक्स इनसाइड अ CPU. जितने भी प्रोसेसिंग हो रही है, भले ही वो डेटा कन्वर्जन है, भले ही कोड की रनिंग है, भले ही जब हमने राजू इनपुट दिया था उससे आउटपुट बनाने का जो प्रोसेसिंग था, सारी चीज़ें जितनी भी कंप्यूटर में होती हैं वो सारा CPU करता है. और CPU को ही हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं या प्रोसेसर भी सिंपली कह सकते हैं. CPU इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. वाई? बिकॉज एवरी प्रोसेसिंग, एवरी टास्क टेक्स प्लेस इन द CPU. CPU में ही सारे काम होते हैं. CPU के अकॉर्डिंग ही डिवाइसेस वर्क कर पाती हैं. अगर CPU किसी डिवाइस को ब्लॉक कर रहा है तो वो डिवाइस कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी बाकी कंपोनेंट्स से. इफ़ CPU कैन नॉट अंडरस्टैंड सम डिवाइस देन दैट डिवाइस विल नॉट वर्क. दस CPU इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. CPU सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइस है. ये आप शायद बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, यहाँ बस मैं उसे एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ. नाउ व्हाट इज़ द प्रोसेसिंग? प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेसिंग ही वो काम है जो CPU करता है. दैट इज़ वाई CPU इज़ कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर. प्रोसेसिंग मीन्स डूइंग सम ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू सम इंस्ट्रक्शन. कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करना किसी डेटा पे पहले से स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस के थ्रू. CPU fetches the instruction from memory and interpret it to know what is to be done. CPU को कोई इंस्ट्रक्शन मिलता है, जैसे हमने टाइप करके कोई कमांड दी या कोई कमांड पहले से मेमोरी में स्टोर्ड है. अगर हम उस कमांड को, उस इंस्ट्रक्शन को CPU को प्रोवाइड करते हैं तो CPU उसे इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है, उसे समझने की कोशिश करता है उस कमांड को, और जब वो उसे समझ लेता है तो वो डिसाइड करता है कि क्या करना है. ठीक है. अब CPU ने अंडरस्टैंड किया, हमने उसे इंस्ट्रक्शन दिया, CPU ने अंडरस्टैंड किया कि क्या करना है. अब CPU देखेगा कि उसे क्या किसी डिवाइस से डेटा लेना है या किसी मेमोरी से डेटा उठाना है, और उसी के अकॉर्डिंग वो या तो हमसे स्क्रीन पे इनपुट मांगेगा या वो अपने आप इनपुट ले लेगा. और जब उसे इनपुट मिल जाएगा तो CPU कुछ परफॉर्म करेगा, कुछ फंक्शन परफॉर्म करेगा, और जो भी आउटपुट होगा या तो उसे वो हमें डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पे, या तो वो प्रिंट करेगा, या फिर उसे वो स्टोरेज में या हार्ड डिस्क में स्टोर कर लेगा. फिर से हम वही प्रोग्राम का एग्जांपल एक बार देखने की कोशिश करते हैं और इसे CPU की प्रोसेसिंग को समझने की कोशिश करते हैं उसी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग. सी, दिस वाज द प्रोग्राम. हियर व्हेन वी टाइप एग्जाम्पल,
हमने जब एग्ज़ाम्पल टाइप किया, एग्ज़ाम्पल फंक्शन को कॉल किया, तो सीपीयू समझ गया कि कुछ इंस्ट्रक्शन है। सीपीयू ने इसे एज अ इंस्ट्रक्शन लिया। अब सीपीयू ने जब इस इंस्ट्रक्शन को लिया तो सीपीयू को समझ में आया कि उसे कुछ इनपुट चाहिए, कुछ डेटा चाहिए, और वो डेटा उसे चाहिए इनपुट डिवाइस से। उसे किसी फाइल से इनपुट नहीं लेना, उसे एक इनपुट डिवाइस से कीबोर्ड से इनपुट चाहिए। तो हमने सीपीयू को इनपुट दिया राजू, ठीक है। उसके बाद सीपीयू ने इसे प्रोसेस किया, इसे स्टोर किया नेम वेरिएबल में। देन सीपीयू फेस्ड अनदर इंस्ट्रक्शन टू आस्क फॉर इनपुट फ्रॉम यूज़र। सीपीयू ने फिर से हमसे इनपुट मांगा, जो कि कीबोर्ड के थ्रू, इनपुट डिवाइस के थ्रू की हमसे इंस्ट्रक्शन मांगा, मेमोरी के थ्रू नहीं मांगा। तो हमने फिर से उसे इनपुट दिया 17। सीपीयू ने 17 को भी एक्सेप्ट किया। कुछ प्रोसेसिंग की, यानी कि कुछ जो पहले से स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन थे उसके अकॉर्डिंग से प्रोसेस किया। ये प्रिंट कमांड में जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन है इसके अकॉर्डिंग इसे प्रोसेस किया और हमें एक आउटपुट दिया। अब ये जो आउटपुट हमें मिला, राजू इज़ 17 ईयर्स ओल्ड, या जैसे हमें आउटपुट यहाँ पे मिले थे, एंटर सम टेक्स्ट, एंटर अ नंबर, ये भी तो एक तरह का आउटपुट ही है, बट उसे हम बाद में देखते हैं। हम मेन वाले को देखते हैं। राजू इज़ 17 ईयर्स ओल्ड, ये हमें एक आउटपुट मिला। अब ये आउटपुट हमें मिला है आउटपुट डिवाइस पे। क्या ये डेटा सेव है मेमोरी में? ये करेंटली मेमोरी में तो है, बट ये स्टोरेज में सेव नहीं है। जब तक हम इसे सेव नहीं करेंगे तब तक ये सेव नहीं होगा। कंप्यूटर इज़ करेंटली डिस्प्लेइंग द आउटपुट ऑन द आउटपुट डिवाइस ऑन द मॉनिटर ऑफ अ कंप्यूटर। आई होप कि आपको ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक फंक्शन था, इसका आपको आइडिया लग गया है। प्रोसेसिंग कैसे होती है, व्हाट इज़ द स्टेप्स इन प्रोसेसिंग, ये आपको पता चल गया होगा। अब नहीं भी चला तो आप मेरे से फिर से पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से बताऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए ही लेक्चर्स हैं और आपको ही समझ में आना चाहिए। तो आगे चलते हैं। मेन कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू इज़ ए कॉम्प्लेक्स डिवाइस। ऐसा नहीं है कि सीपीयू एक सिंपल डिवाइस है। सीपीयू अगर बहुत सारे फंक्शंस कर रहा है तो ऑब्वियसली इसमें कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स भी होंगे। तो इन्हीं कंपोनेंट्स को हम आज कवर करेंगे। फर्स्ट इज़ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सेकंड इज़ कंट्रोल यूनिट, एंड थर्ड वन इज़ मेमोरी रजिस्टर्स। So let us try to cover one by one each component of CPU. Arithmetic logic unit. What is the meaning of arithmetic? आप बोलेंगे arithmetic का मतलब तो मैथ होता है। The meaning of arithmetic is math, simple math. Plus minus divide multiply. This is arithmetic. What is logic? Logic means doing some operation on basis of some comparison. हम true false ग्रेटर देन लेस देन के लॉजिक को, ग्रेटर देन लेस देन को हम एक डिसीजन मेकिंग के लिए अगर यूज़ करें तो उसे हम लॉजिक कहते हैं, ठीक है। यूनिट इज़ सिंपली यूनिट। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ALU का मतलब हमें पता चल गया। ALU का जो मतलब है, जो वर्ड मीनिंग है ALU का, वही उसका फंक्शन है। ALU परफॉर्म्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, the arithmetic calculations like plus minus multiply division, and also takes logical decisions। मतलब कि वो कंपैरिजन भी कर सकता है और कंपैरिजन के आउटपुट के अकॉर्डिंग कुछ फंक्शन कर सकता है, ठीक है। लॉजिकल डिसीजन का मतलब ये है कि वो किसी सिचुएशन को या किसी कंडीशन को कंपेयर करेगा और उस कंपैरिजन का जो भी रिज़ल्ट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग वो कोई डिसीजन लेगा। इसे हम लॉजिकल डिसीजन कहेंगे। So ALU performs mathematical calculations and ALU also takes logical decisions. Next is control unit. Control unit controls data flow, ALU operations, memory registers, input output devices, fetches and decodes instructions from ALU and send control signals to devices. Basically हमने CPU में जो पढ़ा था उसका जो कंट्रोलिंग वाला पार्ट है, जो बाकी सारी डिवाइसेस का बॉस बन के बैठा रहता है, उनका ब्रेन बन के बैठा रहता है, वो सारा काम कंट्रोल यूनिट का है। कंट्रोल यूनिट इज़ लाइक अ बॉस
कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स डेटा फ्लो, मतलब कहाँ से डेटा आएगा कहाँ को जाएगा, ये कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स ALU ऑपरेशंस, क्या ALU से कोई काम कराना है या नहीं कराना, ये भी कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है। ALU कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स मेमोरी रजिस्टर्स। मेमोरी रजिस्टर्स आर सम मेमोरी एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन CPU। तो मेमोरी रजिस्टर्स को भी कंट्रोल यूनिट ही करता है। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सी, हम ये आप पॉइंटर देख रहे हैं ना, इसे भी कंट्रोल यूनिट ही कर रहा है, ये ALU के थ्रू मूव नहीं कर रहा। सो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एज वेल। तो बेसिकली सारा जो बॉस वाला काम है, कंट्रोल करने वाला जो काम है, वो कंट्रोल यूनिट कर रहा है। इसके अलावा एक और काम है कंट्रोल यूनिट का। अब कंट्रोल यूनिट इन सब चीज़ों को अगर कंट्रोल कर रहा है तो ऑब्वियसली वो किसी ना किसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कर रहा होगा, किसी ना किसी कमांड के अकॉर्डिंग कर रहा होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारा जो कंप्यूटर है उसे हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे उसके अकॉर्डिंग ही करेगा, अपने मन से नहीं करेगा। तो कंट्रोल यूनिट फैचेस एंड डिकोड्स इंस्ट्रक्शंस फॉर ALU एंड सेंड कंट्रोल सिग्नल्स टू डिवाइसेस। कोई भी इंस्ट्रक्शन है, कोई भी डेटा है, कोई भी कमांड है, उसे कंट्रोल यूनिट फैच करता है और उसे डिकोड करता है। हम कुछ भी टाइप करते हैं, कंट्रोल यूनिट उसे इंटरप्रेट करता है, उसे समझने की कोशिश करता है और उसके अकॉर्डिंग वो बाकी डिवाइसेस के पास डेटा को भेजता है या बाकी डिवाइसेस से कोई टास्क कराता है थ्रू कंट्रोल सिग्नल्स। नेक्स्ट इज मेमोरी रजिस्टर्स इन दिस components. Memory registers are temporary unit of memory in CPU which hold certain data during operations. यानी कि जब हम कोई प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे कि मैं अभी माइक्रोफोन में बोल रहा हूँ, तो ये डेटा टेम्परेरीली जब प्रोसेसिंग हो रही है एट द जिस टाइम पे, जिस इंस्टेंस पे कोई प्रोसेसिंग हो रही है, उस टाइम पे जो डेटा है वो मेमोरी रजिस्टर्स में स्टोर रहता है। स्टोरेज के लिए नहीं, बेसिकली इमीडिएट ट्रांजैक्शन ऑफ डेटा के लिए, इमीडिएट डेटा इनपुट आउटपुट के लिए मेमोरी रजिस्टर्स का यूज़ होता है ड्यूरिंग ऑपरेशंस। सो वी कैन से मेमोरी रजिस्टर्स आर टेम्परेरी यूनिट ऑफ मेमोरी इन CPU। ये मेमोरी रजिस्टर्स CPU के अंदर होते हैं, बाहर नहीं होते हैं, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि ये तीनों चीज़ें CPU के अंदर की हैं, तीनों चीज़ें CPU के अंदर ही रहती हैं और उसी का ही कंपोनेंट है। टेम्परेरी यूनिट, memory registers are temporary unit of memory in CPU which holds certain data during operations। यानी कि जो डेटा है वो सिर्फ ऑपरेशन के टाइम ही रहेगा। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ है कोई, अगर उस डेटा का ऑपरेशन नहीं हो रहा है तो वो डेटा उसमें नहीं रहेगा। और ये जो कैपेसिटी होती है मेमोरी रजिस्टर्स की, ये बहुत लिमिटेड होती है, बहुत छोटी होती है, इसलिए इसमें डेटा जो है वो रैपिडली चेंज होता रहता है। ACC is main register in ALU. ACC means accumulator. Accumulator जो है वो ALU का ALU के लिए मेन रजिस्टर है। ALU में जब भी कोई डेटा जाता है, आता है, तो टेम्परेरीली एक रजिस्टर में स्टोर होता है, उस रजिस्टर को हम एक्यूमुलेटर कहते हैं। जब ये डेटा एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है, उसके बाद ये ALU में जाता है, और या फिर ALU में कोई ऑपरेशन हुआ है तो उसका डेटा सबसे पहले एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है ACC में, और उसके बाद बाकी जगह ट्रांसफ़र होता है। आई होप आपको मेन कंपोनेंट्स ऑफ CPU समझ में आए होंगे, आपको मेन कंपोनेंट्स का फंक्शन जो है वो समझ में आया होगा, क्या क्या इनकी इम्पोर्टेंस है, क्या क्या इनके काम हैं, किस किस वजह से हम इनका यूज़ होता है, ये आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द next heading. Next heading is memory. Memory is also a functional component of computer. Memory are of two types, primary memory and secondary memory. मैं आपको इन सब लाइन्स से पहले आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। Let me provide you an overview before we go into the text. Memory are of mainly are of two types, primary memory and secondary memory. प्राइमरी मेमोरी इज़ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप जब फ़ोन लेते हैं तो पूछता है ना कि भाई रैम कैपेसिटी कितनी है, अगर PUBG खेलना है तो 8 GB चाहिए, अगर सिंपल टास्क करने हैं तो 4 GB भी चलेगा। तो वो मेमोरी जो है वो प्राइमरी मेमोरी है।
और स्टोरेज यानी कि कितना डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपकी जो पिक्चर्स होती हैं, फ़ोटोज़ होती हैं, वीडियोज़ होती हैं फ़ोन में, जो आप इंस्टाग्राम वगैरह पे अपलोड करते हो या वॉलपेपर शेयर करते हो, वो स्टोरेज में सेव रहता है। तो ये 2 तरह की मेमोरी होती है। और आइए देखते हैं, फॉर्मली इसे पढ़ के देखते हैं हमने जो स्लाइड्स में लिखा है आपके लिए। प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम, यानी कि जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें डेटा सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए ही स्टोर होता है या लोड होता है। स्टोर तो हमें नहीं कहना चाहिए, लोड होता है। अगर हम कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो वो प्रोग्राम जब तक मेन मेमोरी में नहीं जाएगा, जब तक प्राइमरी मेमोरी में नहीं जाएगा, तब तक वो रन नहीं हो सकता। इसीलिए हमें बड़े प्रोग्राम्स को रन करने के लिए ज़्यादा मेमोरी चाहिए होती है, ज़्यादा प्राइमरी मेमोरी चाहिए होती है। ठीक है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी स्टोरेज लोकेशंस ऑफ सेम साइज़। नाउ अगर हमारे पास एक कंटिन्यूस मेमोरी होती तो हम उसमें एक टाइम पे एक ही प्रोग्राम रन कर पाते, तो बहुत दिक्कत हो सकती थी। सो दिस प्राइमरी मेमोरी इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी स्टोरेज लोकेशंस ऑफ सेम साइज़। ठीक है। और हर एक लोकेशन का एक एड्रेस होता है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम बस इतना ही पढ़ेंगे जितना इस लेक्चर के मतलब का है। रैम जो होती है या प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो बहुत सारे सेम साइज़ स्टोरेज लोकेशंस में डिवाइड होती है। हर एक लोकेशन का एक यूनिक एड्रेस होता है। एंड एक्सेस टाइम इज़ सेम फॉर एनी लोकेशन, दस इट इज़ कॉल्ड रैम। हर एक लोकेशन, भले ही उसका एड्रेस 0 हो, भले ही उसका एड्रेस 1 मिलियन हो, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो टाइम लगता है वो सेम लगता है। सिंस हर एक लोकेशन के लिए टाइम सेम लगता है तो हम इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कह देते हैं। मतलब कि आप रैंडमली किसी भी लोकेशन को एक्सेस करिए मेमोरी में तो आपको सेम टाइम लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि 0 को एक्सेस कर रहे हैं तो कम लगेगा, मिलियन को कर रहे हैं तो ज़्यादा लगेगा। सेम एक्सेस लगेगा। रैंडमली कहीं को भी हम किसी भी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम। इट इज़ क्लोजर टू प्रोसेसर, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इंटरनल मेमोरी। प्रोसेसर डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद द प्राइमरी मेमोरी। जो भी प्रोसेसिंग होती है, जो भी प्रोग्राम रन करना होता है, प्रोसेसर किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करे उसे मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है। प्रोसेसर जो है वो सेकेंडरी मेमोरी से इंटरेक्ट नहीं करता किसी भी प्रोग्राम को रन करते हो, इसलिए इसे हम इंटरनल मेमोरी भी कह देते हैं। ए कंप्यूटर कैन नॉट रन इफ़ इट डज़ नॉट हैव अ इंटरनल मेमोरी। स्टोरेज नहीं है तो चल सकता है, बट रैम नहीं है तो नहीं चलेगा। सिंस दिस मेमोरी, दिस रैम इज़ क्लोजर टू प्रोसेसर, इट इज़ कॉल्ड इंटरनल मेमोरी। It is a volatile memory. Now what does it mean? What is the meaning of volatile? Volatile means unstable. लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म में बोलें, मेमोरी के टर्म में बोलें, तो volatile मतलब कि इसमें डेटा जो है प्राइमरी मेमोरी में वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता है। ठीक है। इफ़ देर इज़ सम डेटा एंड सडनली देर इज़ सम पावर फेलियर, लाइट बंद हो गई या कंप्यूटर बंद हो गया, तो वो डेटा इसमें स्टोर नहीं रहेगा, गायब हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसमें कोई प्रोसेस है वो रन कर रहा था लेकिन अब नहीं कर रहा है और दूसरा प्रोसेस हमने रन करा दिया, तो जो पहले प्रोग्राम का डेटा था वो अब इसमें नहीं रहेगा। सिंस डेटा इज़ नॉट स्टोर्ड परमानेंटली, डेटा कैन बी लॉस्ट फ्रॉम दिस मेमोरी, दिस प्राइमरी मेमोरी रैम, thus it is called volatile memory. What is secondary memory? Secondary memory is basically storage. स्टोरेज के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है उसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं ये एक हार्ड डिस्क है, इस हार्ड डिस्क को हम सेकेंडरी स्टोरेज की तरह यूज़ करते हैं। सो सेकेंडरी मेमोरी इज़ यूज फॉर स्टोरिंग द डेटा फॉर लेटर यूज़। जैसे हम कंप्यूटर में अगर हम कोई हम वर्ड डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या हम पेंट में कोई पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब वो रन कर रहा है उस टाइम तो वो रैम में रन कर रहा है, प्राइमरी मेमोरी में रन कर रहा है। लेकिन जब हम उसे सेव करते हैं तो वो एक फ़ाइल बन जाती है और फाइल बन के वो स्टोरेज में यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाती है। अब अगर हम पेंटिंग कर रहे हैं, कुछ ड्राइंग बना रहे हैं
और लाइट चली जाती है, बंद हो जाता है कंप्यूटर, और हम अगर कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे तो हमें वो ड्राइंग फिर से नहीं मिलेगी, क्योंकि रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है। लेकिन अगर उसी फाइल को हमने सेव कर दिया है स्टोरेज में, तो लाइट चली गई भले ही, फिर भी हम अगर स्टार्ट करेंगे तो हमें वो फाइल फिर से मिल जाएगी, हमारा वो वर्क लॉस्ट नहीं होगा। तो बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ ये है कि हम किसी भी फाइल को, किसी भी वर्क को फ्यूचर यूज़ के लिए सेव कर सकते हैं। सो सेकेंडरी मेमोरी स्टोर्स डेटा फॉर लेटर यूज़। इट इज़ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, मतलब कि डेटा इसमें लॉस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट इज़ आउटपुट यूनिट। जैसे इनपुट यूनिट वैसे आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या करता है, कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में प्रेजेंट करता है। जैसे कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे या आप अपने स्मार्टफोन पे या लैपटॉप पे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपकी जो स्क्रीन है वो एक आउटपुट डिवाइस है। आप आउटपुट डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर से आने वाली चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि जो साउंड आ रही है कंप्यूटर के थ्रू वो स्पीकर के द्वारा हमें मिल रही है। ऐसे ही कोई भी चीज़ जहाँ से कि कंप्यूटर के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं, ले सकते हैं, वो सारी डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। हमारे पास एक मोबाइल है, हम जब कैमरे का यूज़ कर रहे हैं तो कैमरा एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन वही कैमरा जब फ़ोटो को क्लिक कर लेता है या हमें स्क्रीन पे दिखा रहा होता है कि हमें क्या सीन दिख रहा है, तो वो स्क्रीन हमारे लिए एक आउटपुट डिवाइस हो जाती है। इट कन्वर्ट्स बाइनरी डेटा कमिंग फ्रॉम कंप्यूटर टू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। हमें ये पता है कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है, तो कंप्यूटर में जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो बाइनरी लैंग्वेज में होती है। बट वी डू नॉट अंडरस्टैंड द बाइनरी लैंग्वेज। हमें 101010 कह के कोई बोले तो हमें समझ में नहीं आएगा कि ये क्या बोल रहा है। तो आउटपुट डिवाइसेस उस बाइनरी डेटा को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं और हमें प्रोवाइड करती हैं। दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ आउटपुट यूनिट। अब हम देखते हैं, इससे हमें ये पता चला कि भाई इनपुट यूनिट नहीं होगी तो हम इनपुट का फंक्शन नहीं कर पाएंगे, आउटपुट यूनिट नहीं होगी तो हमें आउटपुट नहीं मिल पाएगा, मेमोरी नहीं होगी तो हम स्टोर नहीं कर पाएंगे, हम प्रोग्राम को रन नहीं कर पाएंगे, और CPU नहीं होगा तो प्रोसेसिंग ही नहीं होगी। तो इन चारों यूनिट्स को हम फंक्शनल कंपोनेंट्स कहते हैं किसी भी कंप्यूटर का। दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज कंपोनेंट्स। नाउ लेट अस मूव टू कॉमन बस आर्किटेक्चर। कॉमन बस आर्किटेक्चर में एक वर्ड आता है बस। कॉमन का मतलब तो हमें पता ही है, वी ऑल नो द मीनिंग ऑफ कॉमन। कॉमन मीन्स समथिंग विच इज़ जनरल, something which is not specific और something that which is not rare। common यानी कि common, आम है ये तो, ठीक है। आम मतलब मैंगो वाला आम नहीं, आम मतलब common वाला आम, ठीक है। तो common means not rare। बस अभी मैं बताता हूँ। आर्किटेक्चर का मतलब कि किस तरह से कंपोनेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे मकान का आर्किटेक्चर होता है, किस तरह से दीवारें छत से जुड़ी हुई हैं, किस तरह से हमारी बालकनी हमारी मकान से जुड़ी हुई है, तो ये सब आर्किटेक्चर बेसिक आर्किटेक्चर का मतलब है कि जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से किस तरह से अटैच्ड हैं, किस तरह से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो सब है, उसका मतलब होता है आर्किटेक्चर। बस का मतलब क्या है? आपने कभी बस में ट्रैवल किया है? आई होप किया ही होगा, आपने किया ही होगा, ठीक है। तो बस में क्या होता है, बस क्या करती है? बस हमें एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाती है। हमें जब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो हम बस में ही बैठते हैं, और बस का फंक्शन क्या है? बस टेक्स अस इन एंड टेक्स अस टू समवेयर देन ड्रॉप्स अस आउट। बस हमें एक जगह से उठाती है, हमें दूसरी जगह ले जाती है जहाँ भी हमें पहुँचना होता है, और वहाँ पे हमें उतार देती है, ठीक है। ऐसे ही कंप्यूटर में भी एक बस होती है, लेकिन वो ट्रैवल ऐसे नहीं करती है पहियों से, ठीक है। सो इन कंप्यूटर देयर इज़ अ सेट ऑफ वायर्स विच आर यूज्ड टू ट्रांसमिट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आर कॉल्ड बस। कंप्यूटर्स में कुछ वायर्स होती हैं जिनके थ्रू जो डेटा और इन्फॉर्मेशन है, डेटा और इंस्ट्रक्शन है,
वो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पहुंचता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के फॉर्म में, ठीक है। अब सारी चीज़ें तो बस नहीं होती हैं, कुछ वायर्स ऐसी होती हैं जो पावर के लिए होती हैं, ठीक है। उनका हमें बस के सिग्निफिकेंस में या बस के रिलेशन में उनसे हमें मतलब नहीं है। बस का मतलब है कि कुछ ऐसी वायर्स जिनका यूज़ होता है एक जगह से दूसरी जगह डेटा पहुंचाने में। अगर CPU इनपुट आउटपुट डिवाइस से कम्युनिकेट कर रहा है या CPU मेमोरी से कम्युनिकेट कर रहा है, तो किसी ना किसी फॉर्म में तो कर रहा होगा। और हमें पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो इंस्ट्रक्शन या कंट्रोल सिग्नल्स जा रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में जा रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए भी तो कुछ मीडियम चाहिए, है ना। तो ये सिग्नल्स पहुंचते हैं कुछ वायर्स के थ्रू, और उन्हीं वायर्स को हम कहते हैं बस। आई होप आपको बस का मतलब पता चल गया होगा, बट फॉर द सेक ऑफ नोइंग द डेफिनेशन, बिकॉज बस की डेफिनेशन एग्ज़ाम में आ सकती है, सो यू शुड नो द सेट ऑफ वायर्स that are used to transmit data and instructions in form of electric signals are called bus, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कॉमन बस आर्किटेक्चर। हमने बस पढ़ा, अब हम ये देख लेते हैं कि हमने बस पढ़ा क्यों। हमें कॉमन बस आर्किटेक्चर का वर्ड मीनिंग तो पता चल गया, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका एक्चुअल में रियल मतलब क्या है। In a common bus architecture, all devices in a computer communicates with each other through a common bus. Common bus architecture में क्या होता है कि एक सेट ऑफ कॉमन बसेस होती हैं, यानी कि कुछ वायर्स होती हैं, उन्हीं वायर्स के थ्रू सारी डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही हैं। ऐसा नहीं होगा कि हर एक डिवाइस अपने लिए एक स्पेसिफिक वायर ले रही है, स्पेसिफिक बस ले रही है। हम अब बस बोलेंगे, वायर नहीं बोलेंगे। वायर मैं अब तक आप ही के लिए बोल रहा था, ठीक है। सो इन कॉमन बस आर्किटेक्चर ऑल डिवाइसेस शेयर अ कॉमन बस, ऑल डिवाइसेस कम्युनिकेट्स यूजिंग कॉमन बस। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट CPU and memory will not have their different specific buses. There are certain buses and they will use those buses. It is not there that CPU will say, no, I am the boss, I should have different bus. No, it will not work here. You are a component, you will have to use the common bus. एक ही बस है, आप उसी में जाओ, ठीक है। Buses are of three kind: control bus, address bus and data bus, and all these buses together are called system bus, ठीक है। So I hope आपको बस का मतलब पता चला, आपको कॉमन बस आर्किटेक्चर का मतलब पता चला, और क्या सिग्निफिकेंस है इसकी, बस की क्या सिग्निफिकेंस है, ये आपको पता चला। So our lecture for today is complete. We have covered all the topics. We have covered what is computer, definition of computer. We have covered the IPO cycle, the functional components of computers. We have covered the CPU and its components, and we covered the common bus architecture. And these are the questions which you should answer if you have read this, if you have taken this lecture seriously. आपको इन क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर आप इन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं तो आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी। ये टोटली इसी लेक्चर पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। So this is all for today's lecture. If you have any queries or doubts, you can mention them in the comment section, and you can also join the Telegram channel link which will be provided in the comment or the description. Thank you, and let's see you again in the next lecture.